ہر شہر ہر خبر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے رخ کریں گے پنجاب کا۔ اوکاڑا میں لڑکی کے ساتھ مبینہ زیادتی، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق تھانہ اے ڈویژن کی حدود بے نظیر روڈ کے قریب لڑکی کے ساتھ مبینہ زیادتی۔ لڑکی فٹ بال کی کوچنگ لینا چاہتی تھی۔ ملزم انڈر 19 فٹ بال میں کھیل چکا ہے۔ ملزم نے فٹ بال اکیڈمی میں داخلہ دینے کے بہانے لڑکی کے گھر گیا تھا۔ لڑکی کو اکیلا گھر میں پا کر ملزم نے زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس نے لڑکی کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا، جبکہ تفتیش کا آغاز کر دیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، کھاریا میں رشتے سے انکار پر فائرنگ، گولیاں لگنے سے 2 بہنیں قتل ہو گئیں، جبکہ جنرل خورد میں بھائی نے سسر کے ساتھ مل کر اپنی 2 بہنوں کو قتل کر دیا۔ مقتولین کی شناخت صبا اور کلثوم کے نام سے ہوئی ہے۔ بھائی اور اس کا سسر اپنی مرضی کی جگہ رشتہ کروانا چاہتے تھے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے بعد ملزمان فرار ہو گئے۔ والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس نے لاشیں ہسپتال منتقل کر کے کارروائی کا آغاز کیا۔ گجرانوالہ ایف آئی اے زون نے یونان کشتی حادثے میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری کر رکھی ہیں۔ ایف آئی اے نے اب تک 32 مقدمات اور 2 انکوائریاں درج کی جا چکی، جبکہ 10 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن جاری ہے۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے 5 متاثرین کی ڈیڈ باڈیز کی شناخت کر لی گئی، جن میں 3 کی لاشیں پاکستان منتقل کی جا چکی۔ یونان حکام کی تحویل میں 2 مزید ڈیڈ باڈیز کی شناخت کا عمل جاری۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت حاجی احمد، محمد عابد، محمد سفیان، رحمان علی اور محمد عبداللہ کے نام سے ہوئی۔ جاں بحق ہونے والوں کا تعلق سیالکوٹ گجرات اور منڈی بہاؤدین کے مختلف علاقوں سے ہے، جبکہ یونان حکام کی تحویل میں موجود 2 ڈیڈ باڈیز کے لواحقین کے ڈی این اے کے ساتھ شناخت کا عمل جاری۔ ایف آئی اے نے انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائی کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دیں اور ملزمان کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہے۔ حافظ آباد کے انسانی اسمگلر متاثرین کے ہتھے چڑھ گیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کیا۔ نوجوانوں نے ایجنٹ کی خوب درگت بنائی اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ ایجنٹ حافظ آباد سمیت دیگر اضلاع سے درجنوں نوجوانوں کو نوکری کا جھانسا دے کر عراق لے جاتا تھا۔ وہاں نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بناتا اور تشدد کی ویڈیو بنا کر گھر والوں کو بھیج کر رقم منگواتا تھا۔ تاندیا والا میں شادی والے گھر میں ڈکیتی کی واردات، ڈاکو نے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر نقدی اور طلائی زیورات لوٹ لیے۔ تھانہ سٹی کے علاقہ مدینہ ٹاؤن کے گھر میں ڈکیتی کی واردات، 5 ڈاکو نے اسلحے کے زور پر اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لوٹ لیا۔ اوورسیز پاکستانی ایوب قاسم کی شادی کی تقریب تھی۔ مسلح ڈاکو گھر میں داخل ہو گئے۔ ڈاکو نے خواتین کے کانوں سے بالیاں اور طلائی زیورات اتار لیے۔ دلہا ایوب قاسم کو گن پوائنٹ پر تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ دلہا ایوب قاسم کا کہنا ہے کہ ڈاکو کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکو کار میں سوار ہو کر 15 سے 20 منٹ واردات کرتے رہے۔ ڈاکو نے الماری سے تقریباً 9 لاکھ سے زیادہ رقم بھی لوٹ لی۔ گھر اور مہمان خواتین کے تقریباً تولے زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ وہاڑی میں تھانہ ماشوال کی حدود میں اندھا دھند ہوائی فائرنگ، شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ماشوال میں چند روز قبل اندھا دھند ہوائی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس سے پورا علاقہ تھر تھرا اٹھا۔ فائرنگ سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ شہریوں نے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے فوری کارروائی کرنے کی اپیل کی ہے۔ رحیم یار خان پولیس کچے ماچکا میں پولیس مقابلہ، 1 ڈاکو ہلاک، دیگر ساتھی فرار۔ ہلاک ڈاکو سے کلاشن کوف اور گولیاں برآمد۔ ہلاک ڈاکو پولیس ملازم کی شہادت میں مطلوب تھا۔ کچا ماچکا میں پولیس مقابلے میں اندھیڑ گینگ کا خطرناک ڈاکو ہلاک ہو گیا۔ کلاشن کوف اور سینکڑوں گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔ ہلاک ڈاکو کی شناخت میر حسن عرف بکا چانڈیا کے نام سے ہوئی ہے۔ ترجمان پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو سب انسپکٹر رمضان اور 12 پولیس ملازمین کی شہادت سمیت اغوا برائے تاوان میں قتل ہوا۔ قصور میں پولیسی کارکردگی سال 2024 میں مایوس کن رہی۔ جرائم کی شرح میں اضافے سے شہری پریشان۔ پولیس رپورٹ کے مطابق 2024 میں مختلف نوعیت کے 43,254 کیسز درج ہوئے، جن میں 88,920 مقدمات کے چالان مکمل کیے گئے۔ ڈکیتی کی 3,619 وارداتوں میں دوران ڈکیتی ڈاکو کی فائرنگ سے 25 افراد قتل ہوئے تھے۔ گجر خان میں پولیس منشیات فروشوں کی سرپرستی میں مصروف۔ پولیس نے منشیات کے خرد برد میں ملوث پیٹرولنگ پولیس کے 3 اہلکار گرفتار کر لیے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان میں پیٹرولنگ پولیس سب انسپکٹر انچارج چکا خدینہ عدنان اقبال، کانسٹیبلان پیٹرولنگ مسا مدثر اور وقاص شامل ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزمان نے دوران ڈیوٹی منشیات کی بھاری کھیپ پکڑی اور خرد برد کی۔ ملزمان نے برآمد کردہ منشیات میں سے کچھ منشیات کا مقدمہ درج کروایا اور بقیہ منشیات خرد برد کی۔ پولیس نے سنگین مقدمے کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کیے گئے ریڈ کے دوران ایک ڈیرہ سے منشیات کی بھاری کھیپ برآمد کی۔ مذکورہ ملزمان سے تینوں اہلکاروں کے روابط بھی سامنے آ گئے ہیں۔
बहावलपुर में पुलिस ने 6 मन से ज्यादा मनशियात बरामद कर ली। शहरों मुज़ाफ़ात के मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात फरोख्त करने वाला डीलर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मनशियात फरोश वहीदुल्लाह खैबर पख्तूनख्वा 4 सदा का रिहायशी। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 174 किलो चरस और 66 किलो अफीम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मनशियात फरोशों के इस नेटवर्क में शामिल मजीद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। सादिकाबाद में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ पुलिसी कार्रवाई में 38 चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद की गई, जबकि गिरफ्तार मुलजमान से 3 क्लैशनकोफ और 6 पिस्तौल बरामद हुए। एएसपी का कहना था कि चोरी शुदा सामान असल मालिकान को वापस कर दिया गया है और वारदातों को सीसीटीवी फुटेजेस और जदीद टेक्नोलॉजी से ट्रेस किया गया। मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में 36 किलो चरस और शराब बरामद की गई। ओकाड़ा में मारूफ शायर अदीब के किताबों के मुसन्निफ कमर हिजाजी के घर चोरी की वारदात हुई। मास्टर पार्क के गुंजानाबाद इलाके में पेश आया, जहां मारूफ बुजुर्ग शायर अदीब और कई किताबों के मुसन्निफ कमर हिजाजी के घर चोरी की वारदात हुई। कमर हिजाजी साहब मारूफ शायर और अदीब और कई किताबों के मुसन्निफ ने और उन्होंने एक कार चोरी हुई है। घर कोई भी नहीं सी, बेटा जड़ा है वो बीमार सी, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤਾਲਾ ਟੁੱਟਾ ਸੀ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ। ਅੰਦਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ, ਤਲਾਈ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਸੀ 4 ਤੋਂ 5 ਤੋਲੇ और नकदी सी 1 लाख तो ऊपर करके ले गए ने। मुंशनाबाद में आवारा कुत्तों की भरमार। मैक्लोडगंज में बुजुर्ग खातून को कुत्ते ने काट लिया। अमीन बाजार में बावले कुत्ते का हमला, बुजुर्ग खातून को कुत्ते ने काट लिया। बुजुर्ग खातून को जख्मी हालत में आरएचसी मैक्लोडगंज मुंतकिल किया गया। शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया को बावले कुत्तों को तल्फ करना चाहिए। फैसलाबाद में तजावुजात की भरमार है। मार्केट्स और बाजारों में खरीदारों का चलना महाल हो गया। देखेंगे मोहम्मद नसीम शाह की रिपोर्ट। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद शहर से तजावुजात के खात्मे में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। हुक्काम की जानिब से बुलंदोबाग दावों के बावजूद दुकानों मार्केटों से तजावुजात खत्म ना हो सकी, जबकि फुटपाथों पर भी कब्जे जारी हैं। शहरियों का मुतालबा है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तजावुजात के खात्मे के लिए मौसर इकदामात यकीनी बनाए। कचहरी बाजार एक मेन बाजार है 8 बाज़ारों का। यहाँ पर लोगों ने जो मोबाइल एसोसिएशन हैं, दूसरे जो लोग हैं, उन्होंने फुटपाथ पर अपने केबल्स लगाए हुए हैं और उसके साथ साथ जितने भी ये इंतज़ामिया है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। जबकि कुछ जगहों पर उन्होंने ऑपरेशन किया है, जब ये गाड़ियाँ आगे से गुजरती हैं वो फिर से उठाकर वहाँ पे रख लेते हैं। या तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को चाहिए ज़रा इंतज़ामिया को कि इसका मुकम्मल तौर पर सफाया किया जाए या इनको खुली छूट दे के इनको वहाँ पर बैठा दिया जाए। तजावुजात की वजह से शहरियों को पैदल चलना मुश्किल हो चुका है, जबकि ट्रैफिक की बेहंगमी भी रोज़ का मामूल है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद की जानिब से शहर को तजावुजात से पाक करने के दावे सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक महदूद हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इस हवाले से अमली इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नसीम शाह, ABN न्यूज़, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। सियालकोट के शहरी महंगाई से परेशान। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी और कीमतों में पैसे के तयन के खात्मे का मुतालबा किया है। सवारी का अगर कोई हालत नहीं, पैसे नहीं भरती तो सानू होर वधावांगे तो फिर बिल्कुल साडा काम खत्म हो जाएगा, सवारी होर नहीं नेड़े लगेगी। पेट्रोल का रेट वध गया, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਧੇਗੀ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆਖੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ, ਮੜਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਾੜੇ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खानेवाल में सहूलतों का फुकदान। बच्चों और बड़ों की अद्वियात नायाब। अस्पताल के OPD वार्ड में छोटे बच्चों के एंटीबायोटिक और खांसी के सिरप, जबकि बड़ों के लिए मैदे के कैप्सूल, सिरप और ताकत के अद्वियात कई रोज से ख़त्म हैं। दूर दराज से आए मरीज महंगे दामों बाहर मेडिकल स्टोर से खरीदने पर मजबूर। मरीजों के लवाकी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और DC से नोटिस लेने का मुतालबा कर लिया। खानका डोगरा के मोहल्ला मोहम्मदपुरा में लाखों रुपए मालियत से बनने वाले नाले में करप्शन का इंकशाफ। शहरियों का कहना है कि ठेकेदार मुबैना तौर पर दर्जा सोम की ईंटें इस्तेमाल कर रहा है। मजीद जानेंगे मुदस्सिर अली भट्टी की रिपोर्ट में।
खानका डोगरा मोहल्ला मोहम्मदपुरा में अरसा दराज से निकासी आब का बंदोबस्त न होने की वजह से गंदा पानी ने आबादी की वसत में डेरे जमा रखे थे, जिस पर डिप्टी कमिश्नर शुक्रा ने नोटिस लेते हुए निकासी आब के लिए नाले की तमीर के अहकाम जारी किए। मकामी अफसरान की मिली बकत से लाखों रुपए की मालियत के 1200 फुट नाले की तमीर का ठेका मनपसंद ठेकेदार को दे दिया गया। नाले की तमीर में नाकस ईंटें, सीमेंट से ज्यादा रेत जबकि क्रश भी गैर मियारी इस्तेमाल हो रहा है और दूसरी तरफ नाले के लेवल का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। अहले मोहल्ला ने एहतजाज करते हुए कहा, मटीरियल तो बहुत नॉर्मल इस्तेमाल कर रहे हैं जी, बहुत ज्यादा रेत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ईंट जो सी है वो भी बहुत हल्की लगा रहे हैं। तो नालियों के गलियों के मुताबिक ये बहुत ऊंचा नाला है, ये पानी सारा बैग गलियों में जाना है। ये जो मटीरियल लग रहा है रेत लग रही है, इसमें सीमेंट का नामो निशान ही नहीं है और जो क्वालिटी है ईंट की, ईंट को ऊपर उठा कर नीचे फेंको तो 4 टुकड़े हो जाते हैं और बिल्कुल ही नाकस बिल्कुल नाकस बन रहा है। पानी हमारे घरों में अभी दाखिल हो रहा है, ये हाल हो रही है। नाला अवामी सहूलत से ज्यादा ठेकेदार को नवाजने और गवर्नमेंट को लाखों रुपए का टीका लगाने के लिए बनाया जा रहा है, जहां मेरे नाम की कोई शय नजर नहीं आ रही। अवामी हल्के ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब से नाकस मटीरियल इस्तेमाल करने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नाले की नई तमीर का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ दशरथ लिबर्टी, ABN न्यूज, खानका डोगरा। कबीरवाला में एक तरफ सुथरा पंजाब के दावे हैं तो दूसरी तरफ म्यूनिसिपल कमेटी के अमले की गफलत अरूज पर है। शहरों के घरों में सीवरेज का गंदा पानी दाखिल हो रहा है और गटर उबलने लगे हैं। सीवरेज की मेन लाइन की सफाई न होने की वजह से सीवरेज लाइन बंद हो गई, जिसकी वजह से गरीब आबाद में गंदा पानी गटरों से उबलने लगा है और घरों में भी दाखिल हो रहा है। कोट मुबारक बस्ती ओगानी में सीवरेज का निजाम तबाह, गंदा पानी और बदबू से बीमारी फैलने का खतरा। बस्ती ओगानी में सीवरेज नाले टूट फूट का शिकार और गंदा पानी चारों तरफ फैल रहा है। शहरियों का कहना है कि साफ सुथरा पंजाब मुहिम सिर्फ दिखावे तक महदूद, जबकि तरक्याती कामों का मुकम्मल फुकदान है। गंदे पानी में मच्छरों की अफजाइश हो रही है और HIV की शरह बढ़ रही है। हुकाम से दरख्वास्त की जाती है कि फौरी इक़दाम करें ताकि आवाम की मुश्किलात का अजाला हो सके। बहावल नगर में एपका यूनियन के कॉल पर मुख्तलिफ महकमों के सरकारी मुलाजमीन ने नहार सर्कल ऑफिस से DC ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली और धरना दिया। रैली में मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने अपने मुतालबात के हक में प्ले कार्ड्स उठा रखकर जबरदस्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से A17 रूल्स को ख़त्म करना, जबकि लीव एनकैशमेंट को ख़त्म करना और पेंशन में कटौती करने के फैसलों को मुलाजमीन मुस्तरद करते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर इन नोटिफिकेशंस को वापस ले, वरना वो अपने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। लोधरा में पंजाब टीचर्स यूनियन एपका और एगेगा के कायदीन अपने मुतालबात के लिए DC ऑफिस के सामने एहतजाज किया और SQ से DC ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली। हुकूमत पंजाब से यही मुतालबा है कि जो दिसंबर में 2 नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, ग्रेजुएटी में जो कट लगाया है और पेंशन में जो कट लगाया है वो ख़त्म किए जाएं और सबका जो नोटिफिकेशन है वो बहाल किए जाएं। इसके अलावा 17A जो है वो उसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जाए। तमाम मुलाजमीन मुत्तहिद होकर अपने हकूक़ की जंग के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब को उनका किया हुआ वादा, जो उन्होंने मुलाजमीन का पुरअमन एहतजाज, जो तहरीक बड़े ज़ोर और शोर से चल रही थी, उसको मौखर करवाया था और आपने हमसे ये वादा किया था कि जब मैं बरसर इक़्तिदार आऊँगी तो मैं ये आपके तमाम मुतालबात तस्लीम कर लूँगी। पाकपतन में गुज़श्ता साल 2024 में ज़िला भर में कुल 8,456 ट्रैफिक हादसात हुए, जिनमें 9,545 ज़ख्मी अफराद को रेस्क्यू किया गया। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हसन अब्बास बुखारी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस 1122 में। मेरे साथ अपने सेफ्टी ऑफिसर अब्दुल रज़ाक साहब मौजूद है। इनको 2024 में 1,52,000 कॉल मसूल हुई। मज़ीद इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी, लास्ट ईयर रेस्क्यू 1122 पाकपतन ने तकरीबन 40,000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया और उनकी जानें बचाई हैं। इसी तरह मेडिकल की जो एमरजेंसी है वो 25,000 से भी ज़्यादा का फिगर है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में तकरीबन 9,500 से ज़्यादा लोगों को हमने रेस्क्यू किया। अनफॉर्चुनेटली 90 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। फायर एमरजेंसी 325 हैं। ड्राउनिंग केसेस 7 जो रेस्क्यू 1122 ने डील किए। इसी तरह 1900 लोग हैं जिनको हमने DHQ पाकपतन या THQ आरेवाला से साहिवाल या लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। इसी तरह उस डेज़ में
तकरीबन 250 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है, उनको फर्स्ट एड दे के हॉस्पिटलाइज किया। जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑफिसर रजाक साहब ने बताया कि 40,000 से जायद लोगों को इन्होंने रिकवर किया और एमरजेंसी उरस और डिवीज़न भर में इनकी कारकर्दगी नंबर 1 पर और पंजाब में दूसरी पोजीशन इन्होंने हासिल की है। जी काना साहब में डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन 2025 के दौरान आज कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी रोज था, जिसके बाद चौधरी माजिद अली भट्टी फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट पर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। चौधरी माजिद अली भट्टी के मद्दे मुकाबिल असगर अली एडवोकेट और राना बिलाल अहमद एडवोकेट अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए, जिसकी वजह से चौधरी माजिद अली भट्टी फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर बिला मुकाबला मुंतखब हुए। चौधरी माजिद अली भट्टी का ताल्लुक प्रोफेशनल लाइन्स ग्रुप से है। इस मौके पर आयम अमर कज़ाफ़ी एडवोकेट ग्रुप की जानिब से उनको कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर आयम अमर कज़ाफ़ी खरल, चौधरी नज़ीर अहमद सादिक एडवोकेट, राय तारिक महमूद और सदी अहमद डार एडवोकेट्स ने तमाम वकला का शुक्रिया अदा किया और चौधरी माजिद अली भट्टी को फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। चौधरी माजिद अली भट्टी ने कहा कि वकला के मसाले और उनके हल के लिए इनकी जिद्दोजहद जारी रहेगी और वो माजी की तरह आइंदा भी वकला की खिदमत भरपूर तरीके से करें। रिनाला खुर्द में डायरेक्टर जनरल वफाकी मुहतसिब पाकिस्तान की जानिब से खुली कचहरी साइली ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के खिलाफ शिकायत की। मुतल्लिका इदारों के अफसरान को फौरी हल करने के अहकामात जारी किए। देखेंगे अपने नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद अवैस की रिपोर्ट। वफाकी मुख्तसिब डायरेक्टर जनरल अनायतुल्लाह डौला ने रेस्क्यू ऑफिस रिनाला में खुली कचहरी का इनकाद किया, जिसमें सूबाई वफाकी अदारों के नुमाइंदों और दीगर मकामी लोगों ने शिरकत की। खुली कचहरी के दौरान वफाकी अदारों जैसे नादरा, वापटा, पासपोर्ट ऑफिस और बेनजीर इनकम स्कोर प्रोग्राम के तहत अवामी शिकायत वसूल करने की तरकीब की। इस मौका पर वफाकी डायरेक्टर अनायतुल्लाह डौला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इंसाफ आपकी दहलीज पर जो हमारा वफाकी का स्लोगन है, ताकि लोगों को दूर दराज जो हमारे सेक्रेटेरिएट है वहाँ ना जाना पड़े, हम वहाँ से यहाँ आते हैं। मुख्तलिफ उकाड़ा, रिनाला, अभी दीपालपुर में अगला हमारा प्रोग्राम है। डायरेक्टर जनरल अनायतुल्लाह ने तमाम मसाइल को गौर से सुना और इन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ चौधरी मोहम्मद अवैस, ABN न्यूज़, रिनाला खुर्द। चकवाल में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, मछली की मांग में इजाफा हो गया। शहर भर में मुख्तलिफ इकसाम की मछली मार्केट में दस्तयाब है। देखेंगे साजिद बलोच की रिपोर्ट में। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही चकवाल में मुख्तलिफ इकसाम की मछली के स्टॉल सज जाते हैं। शहरियों की बड़ी तादाद मछली की खरीदारी के लिए इन स्टॉल्स का रुख कर रही है। ये खज़ां सर्द मौसम में न सिर्फ तवानाई फराहम करती है बल्कि सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। चकवाल में कांटे वाली भी चल रही है, बगैर कांटे के भी चल रही है। बगैर कांटे में समुंदर की मछली भी आती है, ज़्यादा वैरायटी बगैर कांटे में समुंदर की होती है। जो कांटे वाली मछली है वो दरिया वाली रोहू मिल जाएगा, डमरा मिल जाएगा, माशेर मिल जाएगी, ग्रास मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा। ये आपको जो है ना डैमों और दरियाओं की मछलियाँ मिल जाएंगी। चकवाल के शहरी मछली को ना सिर्फ लजीज खाने के तौर पर देखते हैं बल्कि सेहत के फवायद के बायस भी इसे तरजीह देते हैं। सर ये मछली सर्दियों की खुराक है, इसलिए सेहत के लिए अच्छी होती है, गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में यूज़ होती है। तो ज़्यादा चलती भी सर्दियों के सीज़न में है, जैसे हर चीज़ का सीज़न होता है, फ्रूट का भी सीज़न होता है, माल्टे सर्दियों में आते हैं, इस तरह मछली भी सर्दियों में ही आती है, तो इसलिए इसको सर्दियों में खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। सर असल सर्दियों में खाने का मकसद ये क्योंकि सर्दियों की पैदावार है, क्योंकि गर्मियों में तो गर्म होती है, अवाम ये समझते कि नहीं खाते। ये हम लोग लेने आए हैं, यहाँ पे जो लेने आए हैं वो रोहू मछली लेने के लिए आए हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक हफ्ते में 2 बार मछली का इस्तेमाल दिल की बीमारियों से बचाव के लिए मुफीद है, क्योंकि मछली में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन डी जिस्म के मुदाफियाती निज़ाम को मजबूत करते हैं। कैमरा टीम के साथ साजिद बलोच, ABN न्यूज़, चकवाल। गुजरांवाला में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, पहलवानों के शहर में शहरियों ने खाने पीने की दुकानों का रुख कर लिया है। शहरी जहां पर लजीज गर्मा गर्म गुलाब जामुन खा रहे हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे राना जावेद से। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो जाता है। पहलवानों शहर ने शहरियों ने खापों और लजीज कढ़ाई के बाद स्वीट का रुख कर लिया है, जहाँ पे गर्मों गर्म गुलाब जामुन हमें खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के जो गुलाब जामुन है काफ़ी लजीजा, दूर दराज से लोग यहाँ पे खाने के लिए आते हैं। स्वीट मालिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। स्पेशल खोए के बना रहे हैं हम, तकरीबन हमारे रोजाना बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग हमारे पास आ रहे हैं। जैसा कि आपने दुकान मालिक की बात सुन, उनका कहना चाहिए ये रसगुल्ले खोए से तैयार किए जाते हैं। इस तरह से हलवे में भी हम खोए डालते हैं और मजीद अज्जा डालते हैं, जिसकी वजह से मजीद लजीज हो जाते हैं। यहाँ शहरी आते हैं और ख़ुद भी खाते हैं और घर वालों के लिए भी लेके जाते हैं। बिल्कुल जी।
पंजाब की सौगात खालिस देसी गुड़ लज्जत और ग़िज़ाइयत में अपनी पहचान आप आरिफ वाला में गन्ने का सीज़न शुरू होते ही किसानों ने गुड़ की तैयारी का काम शुरू कर दिया। देसी गुड़ कैसे तैयार किया जाता है देखेंगे राव खालिद कयूम की रिपोर्ट में। गन्ने की फसल तैयार होते ही आरीवाला के देही इलाकों में देसी गुड़ तैयार करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। खेतों से गन्ना लाकर पहले बेलने से गुजारकर रस निकाला जाता है और फिर रस को कड़ाहे में डालकर खूब पकाया जाता है। जब रस पककर तैयार हो जाए तो इसे ठंडा करके पेशियाँ बनाई जाती हैं। सर्दी के मौसम की ये सौगात छोटे और बड़ों में यकसा मकबूल है। यहाँ पे गुड़ खरीदने के लिए आए हैं। यहाँ पे बहुत ही नफासत के साथ गुड़ निकाला जा रहा है देसी तरीके के साथ। सर्दियों में जो गुड़ की चाय होती है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा कराती है। हम चावलों में भी गुड़ को इस्तेमाल करते हैं। सर्दी के मौसम में गुड़ बनाने वालों का काम भी बढ़ जाता है, जिससे इनकी आमदन में इजाफा हो जाता है। गन्ना आप कष्ट करते हैं, उन्होंने कट के लिया के साफ सुथरा करके वेलने चो रस कढ़ते हैं। रस कढ़ के फिर जनाब इसी पकाने हैं, बड़े बेहतरीन तरीके नाल सफाई करते हैं। फिर असीं इहदा गुड़ तैयार करते हैं। बड़ी दूरों दूरों लोग गुड़ ले जाते हैं। सर्दियों का बेहतरीन तोहफा। कुदरती मिठास और ग़िज़ाइयत से भरपूर गुड़ खुसूसी तौर पर खुश्क मेवाजात डालकर भी बनाया जाता है। तिबी माहिरीन का कहना है कि गुड़ का इस्तेमाल सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। कैमरा टीम के साथ राव खालिद कयूम, ABN न्यूज़, आरिफ वाला। टोबा टेक्सिंग में पाकिस्तान की 7वीं और पहली डिजिटल ज़राअत शुमारी का आगाज़ कर दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने इसका इफ्तिताह किया। मज़ीद जानते हैं टोबा टेक्सिंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद आसिफ नदीम की रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग में पाकिस्तान की 7वीं और पहली डिजिटल ज़राअत शुमारी का आगाज कर दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़ीशान लब्बा मसीह ने इफ्तिताह किया। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता डिजिटल ज़राअत शुमारी से मुल्क में ज़रई शोबा से मुंसलिक तमाम एलिमेंट्स की दुरुस्त और जामिया मालूमात हासिल की जा सकेंगी। ये शुमारी 16 फरवरी 2025 तक जारी रहेगी। ज़राअत शुमारी की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़ीशान लब्बा मसीह ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया, जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स का इनिशिएटिव है। बेसिकली ये 7वीं ज़राअत मरदमशुमारी है, लेकिन डिजिटली पहली दफ़ा इसको किया जा रहा है। ये ना सिर्फ ज़राअत मरदमशुमारी है, बल्कि इसके अंदर लाइव स्टॉक को और मोज़ा की डिटेल को और मशीनरी वगैरह को भी जो है वो काउंट किया जाएगा। बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये होगा कि आइंदा आने वाले सालों में जो प्लानिंग है उसको देखा जा सके कि हम लाइव स्टॉक में ज़राअत में किस तरह बेहतर प्लानिंग करके अपने मुल्क के लिए और ज़्यादा बेहतरी के काम कर सकते हैं। डिजिटल ज़राअत शुमारी से हासिल दुरुस्त एदाद शुमार की मदद से मुस्तक़बिल मिलने ज़रई शोबा की तरक्की, पॉलिसी साजी और किसानों की फलाह बहबूद के लिए हिकमत अमली तैयार की जा सकेगी। इस सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर का कहना था, हमारी जो सेंसस ऑपरेशन है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। तो हमारी जो फील्ड है उसमें हमारे जो नुमाइंदा शुमार कुनिंदगान है और सुपरवाइज़र हैं वो 63 हैं, और वो हर फील्ड में जाके हर ब्लॉक में जाके इनमरेशन करेंगे। उसके बाद फिर वो ये फर्स्ट डिजिटल होने की वजह से ये जितने भी हमारा है रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है इसकी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने राय शुमारी के अमला को हदायत दी कि वो इस कौमी फरीजा को ईमानदारी और मेहनत से सर अंजाम दें ताकि दुरुस्त डाटा इकट्ठा किया जा सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ नदीम, ABN न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। सवात में तवील खुश साली के बाद बारान रहमत और बर्फबारी का आगाज हो गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी से वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सियाहती मकामात मालम जबा, काला, मोहडंड और गमीन जबा में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी के मनाजिर से लुत्फानंदोज होने पहुंच गई। महकमे मौसमियात ने बारिश और बर्फबारी के मजीद तसलसल की पेशगोई की। सफ़र के दौरान एहतियात ज़रूरी, गर्म कपड़ों, ज़रूरी अशिया और हिफाजती चेन का इस्तेमाल भी यकीनी बनाया जाए। सर्द मौसम ने वादी सवात के हुस्न को मजीद निखार दिया। चित्राल में रात के बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू। अपर चित्राल बोनी हेडक्वार्टर में रात के बर्फबारी का सिलसिला जारी ताहाल है। लोअर चित्राल के मदाकलश्त और वादी कलाश में कल रात से बर्फबारी जारी। बारिश और बर्फबारी के बाइस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। अपर चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लोअर चित्राल और अपर चित्राल के बालाई इलाकों में 2 इंच से 5 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। बालाकोट में उसके मशहूर सियाहती मकामात शोगरान, नारान और वादी कागान के पहाड़ों पर रात से बर्फबारी जारी। मौसम बहुत सुहाना हो गया। बालाकोट के ऊंचे पहाड़ी मकामात जैसे नारान, मलका पर्वत, कोमकड़ा, मूसी, मसली और शाड़ान में बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। बारिश से किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।
मानसहरा शहर समेत गिरदनवां में हल्की बारिश, जबकि वादी कागान नारान में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। रात से अब तक नारान में मजीद 2 फीट, शोगरान में 1 और कागान में 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। नारान में दर्जा हरारत -3, शोगरान और कागान में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तवील खुशहाली के बाद बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है। लोअर दी डिस्ट्रिक्ट जेल तिमरगरा से सब्जी मंडी तक रोड की तामीर शुरू न हो सकी। लोअर दी में डिस्ट्रिक्ट जेल तिमरगरा से सब्जी मंडी तक सड़क की तामीर का काम शुरू नहीं हो सका। इलाका मक्किनों का कहना है हफ्ता कबल मुतल्लिका हुकाम ने सड़क की पैमाइश की थी और तहम इसके बाद वो गायब हो गए। मकामी MPA फंड्स की मुंतकली का दावा किया था, मगर सड़क की तामीर का अमल अभी तक शुरू नहीं हो सका। 1.5 बरस कबल इस सड़क को तामीर की गर्ज से उखाड़ा गया था। तहसील खैबर बाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में नहरी पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से हजारों एकड़ अराजी बंजर है। बाड़ा से ताल्लुक रखने वाले किसानों का कहना है कि अगर इलाके में आपाशी का निज़ाम फाल हो जाए तो वो मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां और दीगर फसलें उगाने के काबिल हो जाएंगी। देखते हैं मोहम्मद फारूक आफरीदी की ये रिपोर्ट। जिला खैबर तहसील बाड़ा कबीला अकाखेल के जमींदारों ने कहा कि बाड़ा के ज्यादातर जमीनों पे बागात और सब्जी लगाने के लिए हम काफी जद्दोजहद करते हैं। उन्होंने कहा कि जिला खैबर ज़राअत के एहलकार हमारे साथ ताउन करते हैं, लेकिन इस इलाके में ज्यादातर बादल होने की वजह से सोलर सिस्टम बंद, बिजली न होने की वजह से जमींदारों को काफी मुश्किलात का सामना होता है। जमींदारों और इलाके के मशरान ने सूबाई हुकूमत और अरकान पार्लियामेंट से मुतालबा किया कि इनके लिए नहरी निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। बाड़े के जो ज़मींदार है उनका मसला ये है कि इधर के जो चैनल्स है वो निश्त के बराबर है। इसके अलावा इस मौसम में बादल आ रहे हैं और सोलर सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तीसरा ये है कि इधर जो है बिजली निश्त के बराबर है। बाड़े के ज़मींदार जो है वो बहुत मेहनती है और इसकी ज़मीन जो है बहुत ज़रखेज़ है। इसकी जो सब्ज़ियाँ है वो बाहर मुल्क को एक्सपोर्ट करता है। तो हुकूमत से हम ये मुतालिबा करता है कि हमारे साथ ताउन करे और ये ज़मींदार सपोर्ट करे, क्योंकि ये बहुत ज़रख़ीज़ ज़मीन है और दूसरी ये कि ज़मींदार बहुत मेहनत। जिला खैबर तहसील बाड़ा कबीला अकाखेल के ज़मींदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हमारे साथ मुकम्मल ताउन किया जाए। कैमरामैन वकार आफरीदी के साथ मोहम्मद फारूक आफरीदी, ABN न्यूज़ TV बाड़ा। खानपुर डैम के किनारे पुराना खानपुर के मकाम पर 150 साल कदीमी जामे मस्जिद राजगान मौजूद है, जो 1872 में सुल्तान राजा जहांदाद खान ने अपने महल के साथ तामीर कराई थी। मस्जिद की तामीर पर 10 लाख रुपए लागत आई थी और ये 10 साल में मुकम्मल हुई। मस्जिद की तामीर में पाक व हिंद के मिस्त्रियों और मजदूरों ने हिस्सा लिया था। मानसहरा में शौदा पुलिस डिविजनल फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें हजारा भर से 20 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में कोहिस्तान मानसहरा ने कोहिस्तान यूनाइटेड को एक दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दी। टूर्नामेंट के अख्ताम पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मानसहरा शफीउल्लाह खान गंडापुर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की थी। सिंध का रुख करते हुए खबर देंगे थर पारकर सिविल अस्पताल मिट्टी में जचकी के लिए लाई गई खातून जाबाक हो गई। वर्षा सरापा एहतजाज, डॉक्टरों पर लापरवाही और गफलत का इल्जाम लगा दिया। वर्षा ने अस्पताल के अहाते में डॉक्टरों के खिलाफ एहतजाज किया। वर्षा ने कहा कि 3 डॉक्टरों के गफलत और लापरवाही से माँ और बच्चा दोनों जाँ बहक हो गए। जोब में जेल रोड पर भाई की फायरिंग से बहन जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया घर के अंदर पेश आया। लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने 4 जनवरी को कश्मीरी बच्चों के दिन के तौर पर मनाने का फैसला किया है। इस दिन का मकसद हिंदुस्तानी काबिज़ फ़ौज की बर्बरियत का शिकार कश्मीरी बच्चों की कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करना और आलमी बरादरी की तवज्जो भारतीय जुल्म सितम की तरफ मबजूल कराना है। वज़ीर-ए-आज़म ने महकमे जंगलात को हिदायत की कि इस साल की शजरकारी मुहिम को कश्मीरी बच्चों से मंसूब किया जाए। चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि भारतीय फौज की बर्बरियत से सैकड़ों कश्मीरी बच्चे शहीद, जख्मी या मासूर हो चुके हैं और सीज फायर लाइन पर भारतीय फायरिंग के नतीजे में आज़ाद कश्मीर के मासूम बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं। रात से अपर नीलम में बर्फबारी, जबकि लोअर नीलम में बारिश का सिलसिला शुरू है। अपर लोअर ग्रीस में 4 इंच, कील में 3 इंच और शारदा में 1.5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मेन शाहरा नीलम चल्हाना ताकील ट्रैफिक के लिए बहाल है, मगर शारदा से कील तक सफर के लिए हालात मौजूद नहीं हैं।
سبحانی ریاستی خزانے کو لاکھوں کا نقصان، نامعلوم چوروں نے ٹیوب ویل اسکیم کے سینکڑوں پائپ چوری کر لیے۔ صاف پانی کی فراہمی کا منصوبہ کئی سالوں سے غیر فعال ہے اور قیمتی ڈیزل جنریٹر بھی چوروں کے رحم و کرم پر ہے۔ سب ڈویژن سبحانی کی ٹاؤن کمیٹی میں قائم منصوبے کے پائپ ٹیوب ویل اور سبحانی کے درمیان نصب تھے جو اب چوری ہو چکے ہیں۔ حجیرہ کے علاقے ٹانڈا گمبیر میں گاڑی حادثے کا شکار ہو کر کھائی میں گر گئی۔ حادثے میں ایک نوجوان جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ گاڑی ٹانڈا گمبیر کے مقام پر حادثے کا شکار ہوئی جس میں کوہاٹ روڈ فتح جنگ کا رہائشی 27 سالہ نثار نامی نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تحصیل کھوئی ڈٹا کے عہدیداران نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے حکومت کو چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد کے لیے 6 ماہ کا وقت دیا تھا۔ 1 ماہ گزر چکا ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اب یونین کونسل اور وارڈ کی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دے گی۔ لیبر روم کی سروسز کو بہتر بنانے کے لیے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جہلم ویلی ڈاکٹر طاہر رحیم مغل کی سربراہی میں اجلاس منعقد ہوا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے کہا کہ ماں اور بچے کی صحت کی بہتری کے لیے اور لیبر روم میں عوام کو 24 گھنٹے ایچ ویز کی موجودگی بھی ضروری ہے۔ دربار عالیہ بنڈھور شریف تتا پانی میں سالانہ عرس مبارک کا اہتمام کیا گیا۔ پیر سید اکرام حسین کی زیر صدارت دعائیہ تقریب منعقد ہوئی جس میں عقیدت مندوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے علامہ مولانا پیر سید منور حسین شاہ اور علامہ مولانا ارشد القادری نے خطاب کیا جبکہ نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت و اہل بیت میں عقیدت پیش کی۔